Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic, that is revision. So in revision we are going to revise all previous topics of our third class which we have done in our last session. So let's start our topic. So we will pick one by one and solve them. So here we are having question number 1, write in words. So let's pick this one. So here we are having, so we have to write the number name of this number. So we are going to write this is 7001. So we are going to write this is 7001. Clear? Then we are going to see next question. Okay, next is, okay, here we are in question number 2, writing figures. So here we will choose third part, that is 10,000. Okay, this is 10,000, put a comma, 600, okay, and 25. Clear? So next is question number 3, write in the expanded form. So when we talk about expanded form, let's see what we are having here. Here we are having expanded form. So 6 is at 1000 place. So we are going to write 6000. That is 300 plus 40 and this is 5. So this is our expanded form. After that we are having another question. Here we are in question number 4, write in short form. So let's pick this one, second part. Here we are in 1110 and 1. So this will become 1110 and 1. That is 1111. After that we are having insert the greater than less than sign. So we are going to use the first we count the digits. तो हमने यहाँ पे digits देखे, वो क्या दोनों equal है, 3 digit numbers है. Then हम from left hand side to right hand side क्या करते हैं, अपने places compare करते हैं. This is 628, this is 599, which one is greater? This. So देखिए यहाँ पर हम ascending and descending order कर चुके हैं. तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर में. ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हमारे पास सीरीज रहती है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर, देन स्मॉलर 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 एंड एंड करेंगे हम किस पर, स्मॉलेस्ट नंबर पर. क्लियर? तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर पर. ठीक है, सबसे स्मॉल लार्जेस्ट नंबर इज 23, 2300, 3000, 3004, दिस वन. So we are having 3452. Now we have to write the smaller number. Then we are having 3002. Then we are having this one. This is 2300. That is 2300. Then we are having 2003, 2030. So ये हो जाएगा हमारे पास 2030. And last we are having 2003. क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. ओके, हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स. तो रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, दैट इज 26. तो उसको हम ब्रेक करेंगे 20 प्लस 6 में. 20 के लिए हम यहाँ पर 2x शो कर सकते हैं एंड 6 के लिए v एंड i. ओके, तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करिए. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में से हम ले लेते हैं थर्ड पार्ट. This is 20 and this is 8, so we are having 28. Clear? So हमारे पास कुछ word problem type questions हैं कि आप easily कर सकते हैं. तो आगे चलते हैं. So let's see what we are having. So let's pick question number 14. Okay, here we are having question number 14, that is Hitesh earns 5703. He spent this and how much money does he save? Okay, तो देखिए earnings भी बने, spendings भी बने और यहाँ पे हमें क्या देखना, savings. तो चलिए, तो यहाँ पर आता है, लेट्स राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट, दैट इज रितेश अर्निंग, हमें गिवन है कितना, ₹5703. आफ्टर दैट वी आर हैविंग रितेश स्पेंड्स, और स्पेंडिंग्स वो हमें कितने गिवन है, दैट इज 3516. And next we are having Ritesh savings, that is rupees. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन. यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज 13, दैट इज
9, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, तो दैट इज 7, 8 and 6 minus 5 is 1 and this is 2. So we are having 2187 as a savings. Okay, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर हमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन गिवन है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास देखिए ये माइनस में, देन प्लस में, माइनस में, प्लस में। तो पहले हम क्या करते हैं, जो एडिशन क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है, इन दोनों को सब या फिर सीक्वेंस में भी कर सकते हैं। पहले हम इन दोनों क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। ओके, तो चलिए तो यहाँ पर हम दोनों माइनस कर लेते हैं रफ में, जस्ट लाइक दिस। माइनस करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 4, दिस इज 1, दिस इज 2, 9 and this is 1. Okay, so we are having 1, 9, 2, 4 and plus 6, 3, 2 minus 1, 1, 6, 7. देन उसके बाद हम प्लस कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6, 5, 5, 2. ओके, तो नाउ वी आर हैविंग 2556 minus 1, 1, 6, 7. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 8, that is 3 and 1. So we are having our final answer, that is 1389. Clear? चलिए उसके बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन हैं, तो यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन ही ले लेते हैं। दिस 120। तो देखिए अभी आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए बोला जाएगा। उसमें आपको क्या करना होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके पास एक कमोडिटी की वैल्यू की सादा की पूछी जाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें कॉस्ट गिवन है कितना, 7, एक रेडियो का कॉस्ट गिवन है और 9 का पूछा गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ आ रेडी, that is rupees 765. Next is cost of 9 radios, that is 765 multiplied by 9. So we are having our final answer, that will become 9 5s are 45 and 4, 9 6 are 54 or 58, 7 9 is 63 plus 5, that is 68 as answer. Clear? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, देन उसके बाद हमारे पास आता है डिवीजन। तो डिवीजन भी हमें सॉल्व करना आता है। तो यहाँ से भी ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए डिवाइड करने के लिए सिंपल हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जस्ट लाइक फॉर्मेट में। तो आप लोगों ने देखा और क्या, हम इसको ऐसे लिखने के बाद इस नंबर से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं जी, या तो इसकी इक्वल आना चाहिए या इससे थोड़ा सा छोटा आना चाहिए। तो 12 8 से कितना होता है, इट इज़ 96, तो यहाँ पर जाएगा 24, 12 2 से कितना हो जाएगा 24 एंड दैट्स इट। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। ओके, तो यहाँ से पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। दिस वन इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है। देखिए फ्रैक्शन में अभी लाइक सेक्शंस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनका डिनोमिनेटर कॉपी कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं और जो नोमिनेटर्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 3 + 2 5 + 1, दिस इज 6/7। दैट इज आवर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पे होता है हमारा इवेल्युएट। ओके, तो यहाँ पे देखिए फिर से हमें क्या गिवन है, डिनोमिनेटर सेम गिवन है, तो हम इनको कॉमन ले सकते हैं और इनको सॉल्व कर लेंगे। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा है 2/5।
ऐसा आंसर। चलिए इसके बाद हमें यहाँ पर कन्वर्ट इनटू पैसे के लिए बोला गया है। चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम सेकंड पार्ट। अब देखिए हमें पता है कि 1 रुपी इक्वल्स टू होता है 100 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने रुपीज़ के बने 0.99, तो उसको चेंज करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास पैसे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 99 पैसे एज आंसर। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद आगे चलता है। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 एंड इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ सब रुपीज़ में गिवन है एंड आपको उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे जस्ट लाइक दिस, 0.55 एंड 0.85 and 2.75. That is 15, carry 1. This is 9 and 5, 14 plus 7. That is 3, 31. That is 1 and यहाँ पर आ जाएगा 3. Then 3 plus 2, 5. So this is 5 rupees and 15 paise. ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जो हमारा मेजरमेंट से रिलेटेड है, जस्ट लाइक दिस वन। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या है, अब बाइक का ट्रेवल 65 किलोमीटर एंड 325 मीटर इन 1 आवर एंड हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 7 आवर्स। ओके, तो यहाँ से स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इक्वल्स टू किलोमीटर एंड मीटर है, वी आर 65 किलोमीटर and 325 meter. How far does it travel in 7 hours? So we are having here that is distance traveled in 7 hours. So we are going to multiply by 7. So we are having that is यहाँ पर आ जाएगा किलोमीटर एंड मीटर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दिस वन। अब देखिए यहाँ पर हमसे बोले गया है 4 months एंड 9 weeks को चेंज करना है डेज में। ओके, तो 1 month में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। तो मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड इसको ओके 9 weeks वीक को डेज में चेंज करना है, तो 1 week कैरी 7 days। तो अब ये जो दोनों यूनिट है किसमें चेंज हो गई, डेज। ये हो जाएगा हमारा 120, यहाँ पे करेंगे तो 7 9 63, तो करते हैं दैट इज 3 एंड दिस इज 8, 183 days। तो सफिशिएंट है इतना। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स रिवाइज हो गए होंगे, सारी जो भी हमने टॉपिक्स पहले गए थे वो आपको याद आ गए होंगे। अब हम लोग के अंदर दैट इज, अब आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।